Okay. In the journal of Tejas, in the books of Tejas, journal entries. The journal of Tejas. Date particulars, LF, debit, credit. Okay. Now, very first thing, what are you supposed to do looking at the problem? Can you tell me? First entry, sorry, Opening entry. opening entry. Very good. Opening entry will be coming. So you have to just bifurcate your assets and liabilities. आपको कोई बोलेंगे नहीं कि opening entry pass करनी है, ठीक है? हमने पहले भी देखा. Whenever you come across assets and liabilities का list, you are supposed to pass that opening entry. Okay. So let's begin with cash at bank. What is cash at bank? कैश एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस, आपका Bank. बैंक में उतना पड़ा हुआ है. तो कैश एट बैंक इज एसेट. सन्ड्री डेटर्स आर आल्सो एसेट, मतलब डेटर्स से इतना लेना बाकी है. स्टॉक 25,000, मतलब पिछले साल का इतना स्टॉक बच गया है, बेचोगे तो पैसा मिलेगा, एसेट. लैंड एंड बिल्डिंग इज आल्सो एसेट. ओके. एंड क्रेडिट बैलेंस करके दिया हुआ है, दैट इज क्रेडिटर्स मालिनी. क्रेडिटर्स मालिनी, व्हाट इज क्रेडिटर? liability. And what is bank loan? That is also liability. So you can pass the opening entry. We know opening entry का date क्या होगा? What will be the date for opening entry? It will be the first date. April. First date of the year. Okay, we need to pass this opening entry only once in a year. That is on the first date of the year. ठीक है, जब आपका business continue होके start हो रहा है, continue हो रहा है next year में, तभी. तो एंट्री बनेगी आपकी कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट. यू कैन सिंपली राइट बैंक आल्सो फॉर दिस. कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, that is 75,000. Sundry debtors debit 11,000. And stock debit 25,000. Then land and building account debit, that is 1,75,000. All these are assets. Credit balances वो लोग ने hint भी दिया है, that means they are liabilities. So to creditors account, you can also write only Malini. Okay, creditors या Malini. To bank loan account, 25,000. That's it कि और भी कुछ आएगा यहाँ पे? Capital account. Capital. To write capital over here. Most important account. बिना capital के business होगा ही नहीं आपका. How will you calculate capital? It will be debit minus credit, asset minus liability. Asset minus external liability is capital. You know that, right? Total of assets is always equal to total of liabilities. So this total minus this credit side. So how much that comes to? 2,46,000. 2,46,000. Please check. 2,46,000 should be the answer. 246. Okay. Now I'm skipping the narration. All of you are comfortable with narration? I'm skipping the narration. We can save time there. So no narrations needed. We don't have to write now, sir. What? नहीं नहीं. Yep. Narration skip करो चलेगा. Opening entry pass, normal narrations है सब. Skip the narration. Then 1st April 2011. Next one. What is happening on 1st April 2011? Purchase goods worth 20,000 for cash, less 25% TD. So tell me, cash transaction or credit transaction? Sorry.
cash transaction. The cash Cash transaction. 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 Transaction, so which discount should come? Trade discount, not Trade discount. CD नहीं Trade आएगा. discount should come. So trade discount लिख रहा हूँ मैं. 20,000 पे 25%. 20,000 पे less TD 25%. That comes to 5,000. So my net amount is 15,000. Correct? 15,000 is my net amount. And what should be the entry? Will you record any TD in the books? TD का कोई entry तो नहीं होता है. तो आपका journal entry क्या बन जाएगा? It will be simply purchase account debit to cash account. Purchase account debit to cash account 15,000 rupees. Purchase account debit to cash account 15,000. Being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. ठीक है? Clear? Then the next one we have is sold goods to Mohan, SGST 9%, CGST 9%. Tell me, is it on cash or credit? Credit. It's on credit. Credit. It's on credit. Discounts तो है नहीं, लेकिन GST जरूर इस पे ऐड करना पड़ेगा आपको. 20,000 जो goods है, 20,000 का जो प्राइस है आपका इनवॉइस वैल्यू, उसी पे यू ऐड CGST 9%, SGST 9%. That is 1,800 each, right? And the total value comes to 23,600. 23,600 हो गया आपका total value. And what should be the journal entry if you have sold goods on credit with GST? Mohan account debit to sales Mohan account account to debit. output CGST to output SGST. Perfect. Mohan account debit to sales account to output CGST to output SGST. When you are selling, obviously it is going to be output. When you are buying, it is going to be input. And input है तो debit ही होगा. It's like asset. And output है तो credit ही होगा because it's your liability. You're supposed to pay it to the government after deducting the input credit. Input का tax credit deduct करने के बाद. बराबर है? तो आपका amount क्या होगा? 23,600 in Mohan. To sales में जाएगा 20,000. Sorry. Output CGST, output SGST will be 1,800 rupees. Output CGST, output SGST will be 1,800. This is happening on 4th of April. Is that clear? All of you got that? Okay. Now, purchase goods from Sohan were 10,000, SGST 6%, CGST 6% via RTGS. Does it mean, is it on cash, credit? How is the transaction? Totally credit. Cash, but bank. अरे totally cash. Totally cash. RTGS आ गया ना, via bank हो गया वो. तो पहले तो GST लगाना पड़ेगा आपको, कैश क्रेडिट दोनों पे. तो 10,000 पे प्लस CGST 6% plus SGST 6%. That comes to 600 each. And your total value is what? 11,200. What will be the journal entry? Can you tell me, Vidushi, for this? Yeah. Yeah. Purchase goods, purchase account debit to sales account. Eh? अरे no, purchase account to input CGST, input SGST to bank account. हाँ. Purchase account debit, input CGST debit, input SGST debit. When you buy the goods, you obviously pay GST. So that's your asset to bank account. Bank account. Okay. पूरा RTGS के through किया है आपने purchase. Yeah. So 10,000, 600, 600 and 11,200. Okay. Purchase is expense. GST is asset. Input GST is asset. Bank is also asset, but that asset decreased. So credit. So purchase, input to bank. That's on 6th of April.
6th of April, purchase input and put to bank. Purchase input and put to bank. Okay. Then goods costing 1,000 were distributed as free samples. Ria Gandhi, can you tell me the entry? Goods of 1,000 distributed as free samples. Advertisement account debit to goods distributed as free samples account. Perfect. Very good. Advertisement account debit to goods distributed as free samples account. Goods distributed as free samples account. Basically, you're giving goods towards advertisement. Okay? You're not paying by cash. If you would have paid by cash, it would have been advertisement to cash. You're paying via goods. So advertisement to goods. Goods के साथ चिपका देने का. Goods distributed as free samples. That's on 9th of April. And the amount is 1,000 rupees. Okay. Is that clear? Then on 11th of April, what do we have? Received an amount of 2,000 from Vijay, which was previously written off as bad debts. Received 2,000 from Vijay, which was previously written off as bad debts. Forum Nathani. Tell me the entry for this. Cash account to bad debts recovery account. Very good. Cash is coming in and bad debts recovery is like our income. So cash account debit to bad debts recovery account. Cash account debit to bad debts recovery account. That is 2,000 rupees. Yeah, I think कल test में भी था आपको ये question. Okay. Similar question you had in the test. You got it? All of you? Cash to bad debts सर recovery. रिकवर्ड लिखा तो चलेगा? हाँ, recovered, recovery. Absolutely okay. One and the same. Okay. 15th April. Purchase goods from Bhavesh of 20,000 at 10% TD. 20,000 का 10% TD. Minus करना है TD? Credit पे खरीद रहे हो? Cash पे खरीद रहे हो? How are you buying? How are you buying? Credit. Credit. So 20,000 पे, yeah, 20,000 पे 10% TD minus करना है. TD तो दोनों पे आता है, cash as well as credit. 18,000. And what should be the entry? Purchase account debit to Bhavesh account. Purchase account debit to Bhavesh account because you bought it on credit. So purchase to Bhavesh, that should be 18,000. Purchase to Bhavesh will be 18,000. One more. 15th, one more is there. Achha, 15th. Paid 1/3 cash. अरे wait. Combined entry can. Combined entry आएगा. Right. Wait. 15th को ही हो रहा है नीचे. I didn't see that date. 15th को ही हो रहा है. Next वाला भी 15th को हो रहा है, तो you have to combine. Okay, you can combine. What is given? हाँ. Can I start? Yes, you can. 15th को ही हो रहा है and then उसके बाद देखो 15 को क्या दिया. Paid to Bhavesh 1/3 of cash and received 5% cash discount. So this is actually not entirely credit. This is partly cash, partly credit. Remember we used to do that? Part cash, part credit. So immediately pay किया है. तो 1/3 and 2/3. 1/3 is cash and 2/3 is credit. 1/3 is what? 6,000 and 2/3 is what? 12,000. And now the CD component will come only on the cash part, 5%. 5% is cash discount, so that will be 300 and net amount will be 5,700. 5,700. Okay, now what should be the entry, Bansi? Can you tell me what should be the entry for this? Bansi Joshi. Partly cash, partly credit. Purchase account debit to Bhavesh account. That's it. पूरा है, दोनों एंट्रीज है. 15th का 2 है, दोनों को क्लब किया है. Partly cash, partly credit.
What is the entry for cash purchase? Cash to Bhavesh account. Cash to Purchase to cash account, sorry. हाँ, वो दोनों को क्लब करो, किया ना कंबाइंड एंट्री. क्या होगा कंबाइंड एंट्रीज का? कल पेपर में भी था. Purchase account to discount received account to cash account to Bhavesh account. बराबर है. परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव टू भावेश. बराबर है. तो परचेज अकाउंट डेबिट क्या होगा अमाउंट? बंसी, व्हाट शुड बी द अमाउंट इन परचेजेस? नेटवर्क नहीं है तुम्हारा स्टेबल. पूजन, कैन यू टेल मी द अमाउंट इन परचेजेस? Purchase account debit 18,000 to discount received 300 to Right. cash account 5,700 to Bhavesh 12,000. बराबर. Perfect. Purchase to cash to discount received to Bhavesh. Why did we club the entry? All of you got? Why did we club the entry? Because both the transaction happened on the same day. तो एक लाइन में भी दे सकता है, कभी ऊपर नीचे भी आ सकता है. ओके, तो ध्यान रखना. कॉमन डेबिट, कॉमन क्रेडिट्स यू कैन ऑलवेज क्लब. देन 21st को हो रहा है. नेक्स्ट वन इज 21st of April. What is happening? Read. Received a cash gift of 11,000 from mother-in-law with which purchased shares of Tata company for the business. बहुत अच्छा एंट्री है. Again read. You got a gift from mother-in-law with which you purchased the shares of Tata company for the business. Jainam Shah, can you tell me what should be the entry for this? Jainam? सर पहले कैपिटल बनाएंगे. मतलब पर्सनली गिफ्ट आया कि बिजनेस को गिफ्ट आया? गिफ्ट किसको मिलता है? Personally. So cash account debit to capital account and then investment and shares account debit to bank account. गड़बड़ हो रही है. निशांत, would you like to try? Investment and shares account 11,000 to bank account 11,000. हाँ, गलत है. रुतवा? Investment in shares account debit to capital account. हाँ, ये होगा एंट्री. क्या हुआ है? मदर इन लॉ से गिफ्ट मिला, सॉरी, वही पैसे से उसने डायरेक्टली शेयर्स खरीद लिया. तो वो पहले गिफ्ट आया, कैश टू कैपिटल, फिर शेयर्स खरीदा. ये दो अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि सॉरी, इफ आई टेल यू आई रिसीव्ड अ बेरर चेक फ्रॉम अजय. तो व्हाट एंट्री यू पास व्हेन यू रिसीव अ बेरर चेक? कैश अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, right? But if I tell you received a bearer check from Ajay and deposited it in the bank on the same day. Received a bearer check and deposited it in the bank on the same day. Capital account debit to Ajay account. Bank account. Cash account debit to bank account. Bank to Ajay. Bank to Ajay. Cash के जगह बैंक हो जाएगा ना, because cash is directly going inside the bank. So what do you do basically? Cash to Ajay, कैश आया अजय से, और बैंक टू कैश. ऐसा ये दो एंट्री करने के जगह एक ही एंट्री होता है आपका, बैंक टू अजय, क्योंकि सेम डे बैंक इज द रिसीवर एंड अजय इज द गिवर. आर यू गेटिंग दैट? तो ये एंट्री में भी ऐसा ही हुआ. ओनर से पैसा आया, गिफ्ट मतलब ओनर से बिजनेस में पैसा आया, और वो सेम डे वो पैसा दे के हमने शेयर्स खरीद लिए. तो सेम डे बिजनेस में कौन सा एसेट आ गया है? शेयर्स आ गया. और कहां से आया? ओनर के थ्रू आया. ओनर ने जो पैसा डाला था उसके थ्रू आया. इज दिस क्लियर? सो कंबाइंड एंट्री आपकी क्या बन जाएगी यहाँ पे? इट विल बी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बैंक, कैश और कैपिटल. व्हाट विल यू राइट? कैपिटल. सेम डे आ गया. सॉरी व्हाट आर यू आस्किंग मोक्ष?
Investment in shares account debit to capital account. I'll give you one more example. Owner got a gift of 11,000 with which he purchased furniture for the business. Owner got a gift of 11,000 with which he purchased furniture for the business. तो क्या होना चाहिए एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि ओनर डाल रहा है पैसा, सिंपल है ना. ओनर गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम मदर इन लॉ which he directly deposited in business bank account. Owner got a gift from mother-in-law which he directly deposited in business bank account. हाँ. बैंक अकाउंट टू कैपिटल. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, डायरेक्टली पैसा बैंक में जा रहा है एंड ओनर इज द गिवर. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सेम डे ओनर लाया पैसे और सेम डे आपने कोई एसेट एक्वायर कर लिया, कोई गुड्स खरीद लिया, समझो ऐसे दिया है. ओनर गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम मदर इन लॉ 11,000 with which he purchased goods for the business. With which he purchased goods for the business on the same day. So purchase account debit to capital account. So purchase account debit to capital account. Is that clear? It will be purchase account debit to capital account. पर सर अगर सेम डे नहीं होता तो इधर बैंक अकाउंट आता ना. हाँ, सेम डे नहीं होता तो दो सेपरेट एंट्रीज आ जाते हैं आपके. पहले कैश टू कैपिटल और फिर नेक्स्ट कभी शेयर्स खरीदा तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक. गॉट इट? पहले कैश टू कैपिटल आता, फिर एक दो दिन बाद जब शेयर्स खरीदे तभी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक. सेम डे नहीं होता तो सेम डे हो रहा है तो डायरेक्टली. मुझे एक बात बताओ, ऐसा दिया है ओनर got a gift with which he paid business electricity bill. Owner got a gift with which he paid business electricity bill. What should be the entry? Electricity to cash. Electricity to capital. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी टू कैपिटल डायरेक्टली. कैश नहीं आएगा अभी. क्यों? क्योंकि ओनर लाया पहले और वो डायरेक्टली उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल ही पे कर दिया. तो कैश ऐसा हो रहा है ना, कैश टू कैपिटल हो रहा है और फिर इलेक्ट्रिसिटी टू कैश हो रहा है. तो सेम डे हो रहा है. तो कैश आया गया निकल गया, डायरेक्टली पे कर दिया. घर से पैसा लिया और बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करके आ गए. तो कैश आया गया कुछ है ही नहीं बिजनेस में, तो नलिफाई. तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी टू कैपिटल. गेटिंग दिस? मुझे बताओ, ओनर डायरेक्टली पेड बिजनेस रेंट फ्रॉम पर्सनल कैश. ओनर डायरेक्टली पेड बिजनेस रेंट फ्रॉम पर्सनल कैश. Rent to capital. रेंट टू कैपिटल. रेंट टू कैपिटल. लेकिन सिर्फ आपको ऐसा दिया है पेड बिजनेस रेंट या पेड रेंट, तो एंट्री क्या होगा? तो फिर रेंट टू cash. तो फिर रेंट टू कैश हो जाएगा. गॉट इट? But if you pay rent from personal cash, then it is rent to capital. If you pay electricity bill from personal cash, electricity to capital. If you buy furniture for business from personal cash, furniture to capital. Is this clear? Got a knack? Then next one, 25th. Yeah. और अगर ऐसा है कि ओनर पेड हाउस रेंट फॉर पर्सनल कैश, तो नो एंट्री. पर तो no entry. रीजन क्या लिखने का? क्योंकि पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर नॉट एंटर्ड इन बिजनेस बुक्स ड्यू टू एंटिटी कंसेप्ट. ओनर पेड हाउस रेंट फ्रॉम पर्सनल कैश, मतलब पर्सनल एक्सपेंस पर्सनल कैश. तो बिजनेस में तो कुछ आया भी नहीं गया भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो नो एंट्री. Right? Because personal entry, personal transactions are not recorded in business books due to entity concept. Okay, that will be your reason. कल लिखा है ना नो एंट्री का रीजन. एक नो एंट्री भी था कल सब में, पता चला ना नो एंट्री था. हाँ. पर वो ये वाले सम में कैसे लिखने का, क्या रीजन लिखने का, वो नहीं मालूम. हाँ, वो तो ठीक है, मैं कल का बोल रहा हूँ, वो तो समझा मैं. कल वाले सम का मैं बता रहा हूँ. नो एंट्री लिखा है, placed an order, received an order, reason लिखा है. दो entries थी. दो नो एंट्रीज था. यस, दो नो एंट्रीज था. देन दोनों ऑर्डर प्लेस किया हुआ है. दोनों ऑर्डर प्लेस करने का था. यस. 25th अप्रैल का देखो अभी क्या दिया है. रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन विथ इंटरेस्ट 5,000 रुपीज. ब्रैकेट में दिया हुआ है इंटरेस्ट 1,000 वाया NEFT.
पहले तो जस्ट लुक एट इट, थिंक एंड टेल मी, इज इट 5000 प्लस 1000 या इट इज 4000 प्लस 1005? 4000 plus 4000 plus 1000. 4000 plus 1000. 4000 प्लस 1000 5000, ये बात सबको समझ में आ गई? तो आपने क्या किया, लोन रिपे किया है 4000 और इंटरेस्ट भी पे किया 1000. तो आराम से अलग अलग एंट्री पहले सोच लो, फिर कंबाइन करेंगे उसको. व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या होता है हमारे लिए? Interest to bank. Interest to bank. Interest to bank, absolutely right, very good. All of you got that? Interest to bank. Then a loan, obviously interest you pay, right? And that's your expense. So interest, debit और expense to bank, क्यों? क्योंकि NEFT से पे किया है आपने, right? Expense पे किया. What about when you repay the loan? जब आप लोन वापस चुकाओगे तो क्या एंट्री? Bank loan to bank, because liability is loan, and if it's decreasing, then you debit it. Yeah. And bank will And be bank credit, क्योंकि पैसा जा रहा है. Okay, asset decreases. Absolutely right. जब आप लोन लेते हो, ये समझा सबको क्या बोला वीर ने? जब आप लोन लेते हो तभी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, या कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, है ना? कैश इज कमिंग इन, लोन इज द गिवर. हेलो, अब आपने रीपे किया तो आप क्या करोगे? जस्ट रिवर्स द एंट्री. इट विल बी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. डिड यू गेट दैट? Hello, liability decreases so debit and cash decreases so credit, asset decreases so credit. Okay. Yes. यहाँ पे आपने बैंक लोन रीपे भी किया है, तो बैंक लोन रीपे करने का क्या एंट्री होगा? बैंक लोन टू बैंक होगा, क्योंकि एनईएफटी से रीपे किया आपने. तो कैन यू क्लब बोथ द एंट्रीज? पहला वाला क्या था? इंटरेस्ट टू बैंक, दूसरा वाला था बैंक लोन टू बैंक. तो कंबाइंड एंट्री क्या बनेगा आपका? interest account debit Bank loan to bank account. to bank account. नहीं कंबाइंड. डेबिट बैंक लोन डेबिट. हाँ, इंटरेस्ट डेबिट, बैंक लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये एनएम मिटी भाई पोदार के लिए खास. बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. हाउ मच यू विल राइट इन बैंक लोन? 4000. 4000 is only towards loan. उधारी जो लोन था वो 4 ही चुका है आपने. 1000 is towards interest and 5000 is what you are paying in all total. Can you write both together as bank loan to bank 5000? Will that be correct? No, because interest cannot be added up to the. Why? Because both the accounts are different nature account. One is liability and one is expense, right? एक लायबिलिटी और एक एक्सपेंस है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते आप. मैं आपको बोलूं, पेड अजय 5000 बाय चेक and incurred bank charges 100 rupees. Paid Ajay 5000 by check and incurred bank charges 100 rupees. तो Ajay क्या बना? account bank charges. Ajay account debit, bank charges account debit to bank account, right? Will you add bank charges to Ajay? Is it correct to add bank charges? No, because Ajay is a creditor. He is your liability. Liability decreases. That's a different thing. And bank charges are your expense. नया नकोर expense है. उसको तो अलग से debit करना पड़ेगा. Yes or no? So you cannot mix bank charges with Ajay. Same way over here. You cannot mix interest with bank loan. Interest is expense. Bank loan is liability. Is this clear? Okay. So keep that in mind. Next one. अभी ये वाला पार्ट पूरा important है सम में. 29th entry. देखो ध्यान से सब लोग क्या दिया हुआ है. Sold goods to Ashok 4,000 rupees at 10% TD and received half the amount in cash, for which 5% CD is given. GST is 12%. अभी ये प्रॉब्लम में TD भी है, CD भी है, GST भी है. TD भी है, CD भी है, GST भी है. Now how to do the calculations? तो अपना बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा. सबसे पहला क्या करने का बोलो? सबसे पहला TD subtract. देखो आराम से करना, स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूं. देखो गुड्स ऑफ 4000, तो पहला 4000 लिखो, उस पे TD माइनस करो. सबसे पहला TD तो उड़ा ही देने का, डेफिनेटली उड़ा देने का.
10% TD, that is 400, ये माइनस किया, so you got 3600. ये बात समझ आई सबको? 3600 हो गया. ओके, नाउ अभी GST. Okay, second part, after TD you used to add GST, remember? After TD we used to add GST. याद आ रहा है ये? तो GST ऐड कर देने का. After TD add GST, क्योंकि GST टोटल पे लगता है ना, कैश क्रेडिट दोनों पे लगता है. खाली कैश पे GST नहीं लगता है, you know that, right? कैश हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, GST तो दोनों पे लगता है. TD भी दोनों पे लगता है, GST भी दोनों पे लगता है. तो पहले TD सब्ट्रैक्ट कर लेना, then add GST. So add कितना परसेंट है यहाँ पे? 12%. तो 6% CGST and 6% SGST. So I think that comes to 216. So what is your total value? 4032. 4032. तो पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने TD सब्ट्रैक्ट किया, उड़ा दिया ऊपर का माला. TD कहीं रिकॉर्ड नहीं होता. प्रीत को समझ रहा है? दूसरा मैंने क्या किया? GST ऐड कर लिया. ओके, ये हमने बहुत बार किया हुआ भी है पहले समय. And now you divide the portion into cash and credit. How much is cash? How much is credit? Half is cash, half is credit. So just divide it into half. आधा cash, 2016. आधा credit. 2016. 2016. Half cash, half credit. Okay, half cash, half credit. And now CD will come on which part? Cash. Cash part. CD will come on the cash part. तो मैं ये cash part पे CD कैलकुलेट करेगा, right? अभी सुनना, यहाँ पे एक कैच है. ओके, यहाँ पे जब भी TD CD का कंबाइंड ट्रांजैक्शन आता है तो टेक्स्ट बुक में एक्चुअली 2 मेथड्स दिए हुए हैं. सैडली बोथ आर रॉन्ग. टेक्स्ट बुक में 2 मेथड दिया गया है TD CD GST का टैकल करने के लिए, बट बोथ आर रॉन्ग. करेक्ट मेथड क्या है जो प्रैक्टिकली होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, सुन लो. ओके, एक्चुअली प्रैक्टिकली आप ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं करोगे. ओके, ये भी स्लाइटली रॉन्ग ही है. एक्चुअली कैसे करने वाले हो आप? TD CD GST आपका 4000 का गुड्स है, ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं ऐसे होता है. 10% 400 माइनस करते हो, यू गेट 3600. ठीक है, उसको आप डिवाइड कर देते हो कैश क्रेडिट. ओके, कैश इज 1800, क्रेडिट इज 1800. फिर कैश पे आप CD ले लेते हो. कैश पे CD कितना होगा आपका? 5%, दैट इज 90 rupees. So you get 1710, and then you add GST to both. तो कैश एज वेल एज क्रेडिट पे यू ऐड 6% CGST एंड SGST जो भी आया, और यहाँ पर भी आप ऐड करते हो CGST 6%, SGST 6% जो भी आया ऐड करो, और फिर जो फाइनल अमाउंट आएगा ये एंट्री बनेगा आपका फाइनल कैश पार्ट में. मतलब एंट्री तो वही है, परचेज इनपुट टू कैश टू सी डिस्काउंट टू पार्टी अकाउंट, बट कैलकुलेशन ऐसे होने वाले हैं. कैलकुलेशन कैसे होने वाले हैं? जब भी प्रैक्टिकली आपके पास TD CD दोनों होता है और GST होता है, तो प्रैक्टिकली क्या करते हो? TD भी माइनस करते हो, CD भी माइनस करते हो, फिर GST ऐड करते हो. पहले TD भी माइनस होता है, CD भी माइनस होता है, GST ऐड होता है प्रैक्टिकली. ये समझ आ गई बात? ये मेथड इज फॉलोड ओनली बाय पोदार. दिस मेथड इज फॉलोड ओनली बाय पोदार. ओके, जो प्रैक्टिकल मेथड है. TD भी सब्ट्रैक्ट करो, CD भी सब्ट्रैक्ट करो, और GST ऐड करो. ठीक है, तो पोदार will follow that method, but NM, Mitibai, HR, all the other colleges, they are following the one method which I am teaching right now आपको. ठीक है, तो ये मेथड प्रैक्टिकली है, ये मेथड आपको नहीं करना है. ठीक है, आपको ये वाला करना है जो अभी हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे. इसमें कैसे करने का देखो, पहले TD हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर GST ऐड कर लिया, फिर हमने टुकड़ा टुकड़ा कर लिया कैश क्रेडिट का. अब मेरे को CD लेना है. CD कितना परसेंट है? 5%.
ये 5% 100.8. wrong. 101. Wrong. This 5% you will take on what value? This 5%. 3,600. ये जो आफ्टर टीडी अमाउंट दिख रहा है 3,600, आफ्टर टीडी वैल्यू दिख रही है 3,600, ये पूरा अमाउंट ना, इसमें आधा ही कैश है तो इसका हाफ 1800 पे लेने का 5%. आफ्टर टीडी वैल्यू है ना, दैट वाज 3,600 ना, आफ्टर टीडी 3,600, बट 3,600 ना, उसमें आधा कैश था आधा क्रेडिट था, तो CD will come only on the cash part ना, CD should come only on the cash part. तो कैश कंपोनेंट कितना है उसमें 1800 है, तो 3,600 का हाफ कर देने का उधर. अगर समझो फुल्ली कैश ट्रांजैक्शन होता ना तो मैं 3,600 पर ही ले लेता, आई वुड हैव टेकन ऑन 3,600, बट दिस इज हाफ कैश हाफ क्रेडिट, तो 3,600 का हाफ कर दो और उस पे 5% लो, तो 1800 पे 5%, तो योर डिस्काउंट विल बी 90 रुपीज, CD will be 90 rupees, okay, and your final amount will be 2016 minus 90, that will be 1926. This is how you are supposed to calculate. Once again I'll repeat, once again I am repeating, देख लो ध्यान से एकदम. पहले तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप यू आर supposed to subtract TD, subtract TD, add GST, total amount पे add GST, then you divide cash and credit. Cash, credit, half cash, 1/4, 3/4, half, whatever it is, 1/3, 2/3, divide it between cash and credit. Clear till that point? Now, when you are supposed to calculate CD, you don't calculate CD on 2016. 2016 पे नहीं करना है आपको. क्यों 2016 पे नहीं करना है? 2016 पे करेगा अभी CD कैलकुलेट, तो क्या इसका मतलब है, आपने गुड्स के अमाउंट पे तो किया ही है, जीएसटी के अमाउंट पे भी सीडी ले लिया है, जीएसटी पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है. वो 2016 में वो इतना डिस्काउंट भी, ये जीएसटी भी पड़ा हुआ है ना 216 का, तो आपने उसको भी डिस्काउंट में कंसिडर कर लिया. जीएसटी पे कोई डिस्काउंट नहीं होता, खाली गुड्स वैल्यू पे डिस्काउंट होता है, एक्चुअल वैल्यू पे. तो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स, ये वाला है 3,600. लेकिन डायरेक्टली 3,600 पे नहीं कर सकते, क्यों? Why I am not taking on 3,600 directly 5%? Half is cash. हम लोग हाफ कर रहे हैं, हाफ है ना, हाफ कैश हाफ क्रेडिट. Only the cash component 1,800 will have CD. Okay, you have a doubt, forum Malavia? All of you understood? Sir, if we are doing this, then we could directly follow the Podar method, right? Because we don't have to show the calculation. Why to make it so confusing? Answers will be different. You get a different answer. But we are doing the same thing. We are calculating on 1,800, and here also we are calculating on 1,800. Oh, the CD will change, but the GST will change. Here you have taken GST on after TD amount. Actually, you are supposed to take GST on after TD and after CD amount. Here, the GST part will change. Amount will change. So only Podar should do that. Podar method we are saying over. Podar method अपने को नहीं करने का है. Podar method अपने को नहीं करने का है. वो खाली Podar follow करना है. ठीक है? So in final exams, then what method should we? This method, NM, Mithibai, HR, this method. Okay, this is what they have followed. They were planning to change it last year by making the change in the standard textbook, but no fruits borne till date actually. अभी तक आपका कुछ standard textbook में changes आया नहीं है, तो we are following the same method as the colleges were doing last year. Okay, but याद रखना ये correct method नहीं है, correct method actually पोदार वाला है. Okay, immediately जब भी, क्योंकि GST का लॉ क्या बोलता है, बहुत सिंपल सा लॉ है. देखो, मैंने 1,000 रुपए की बुक्स है, ओके, आपने बल्क में खरीदी, मैंने 900 में आपको दी, वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया. फिर मैंने बोला कि आप इमीडिएटली पैसा दे रहे हो, आपने बोला ठीक है, मैं बोला ठीक है 800 दे दो, 100 रुपया और कैश डिस्काउंट दे दिया, तो मैं बिल बनेगा 900 जो भी है CDVD माइनस करके, बट जीएसटी वाला बंदा क्या बोलता है, आपने एक्चुअली कितने में बेचा है, पैसा कितना मिला 800,
इमीडिएटली डिस्काउंट दिया है ना आपने, कैश डिस्काउंट इमीडिएटली, तो 800 पे जीएसटी लगाओ, जीएसटी 800 रुपए पे लगाओ। ओके, जितना आपको कलेक्शन मिला है ना वही अमाउंट पे जीएसटी लगाओ, इमीडिएट कलेक्शन। तो इमीडिएटली अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हो, इमीडिएटली इफ यू आर गिविंग एनी कैश डिस्काउंट, तो टीडीबी माइनस कर दो, सीडीबी माइनस करो, और फिर जितना आपको इमीडिएटली पैसा आया उस पे आप जीएसटी लगाओ और उतना आप गवर्नमेंट को दे दो, इनपुट माइनस करके। इज दिस क्लियर? सिंपल सा कंसेप्ट है लॉ का, कोई कंफ्यूजन नहीं है वहां पे। ये आपको थियोरी है, इसके लिए थोड़ा याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अपना कॉलेज का मेथड से स्टिक टू रहना। ओके, तो फिलहाल पोदार यू कैन सॉल्व बाय बोथ, ये भी कर सकते हो आप साइड में कैलकुलेट करके, और वो भी कर सकते हो। आप कॉलेज में कंफर्म कर लेना वंस द कॉलेज स्टार्ट्स। ओके, अगर पोदार स्टिक्स टू दैट ओरिजिनल मेथड देन यू डू दैट, otherwise you can also follow the other college method. Okay, they keep changing, make some changes every year, something they do. Okay, So we divide the amount over here and then we calculate GST. in podar No, in general, MATY. इन नॉर्मल मेथड ये करना है, ये जो मैंने किया ना, पहले टीडी माइनस करना है, जीएसटी ऐड कर देना है, फिर डिवाइड करना है, और फिर खाली ये चीज का ध्यान रखना है, जब आप सीडी कैलकुलेट करोगे ना, ये सीडी डायरेक्टली 2016 पे मत करना। ये सीडी कौन से वैल्यू पे करोगे आप? जितना अमाउंट पे कर रहे हो उसको डिडक्ट करके, हाँ, आफ्टर टीडी अमाउंट, इस अमाउंट पे करोगे। 3600 का हाफ लेके करो, ठीक है? 3600 का हाफ लेके यू विल डू 1800 पे यू विल कैलकुलेट 1926। in short GST as well as CD is calculated on the same amount. ये शॉर्टकट आप याद रख सकते हो for other colleges apart from Podar. What is a shortcut to remember? CD as well as GST will be calculated on the same amount, that is after TD amount. GST भी उसी पे होगा, CD भी उसी पे होगा। Is it clear? But we have to keep in mind how many divisions are there, half cash, half credit. Yes, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, जितना है उतना। जो कैश कंपोनेंट है उसी पे आएगा। सी अगर टोटल का 1/4 कैश होता, फॉर एग्जांपल इन दिस सम, इंस्टेड ऑफ हाफ, सपोज इट वुड हैव बीन 1/4 and 3/4, 1/4 कैश 3/4 क्रेडिट, तो फिर कैसे करते? 3600 का 1/4 कर लेने का। 1/4 कितना होता है? 900। तो 900 का 5%, 45 rupees would have been your CD in that situation. and plus 12% of GST. ए बापा, जीएसटी થઈ ગયું ऊपर, जीएसटी हो गया, खाली सीडी बता रहा हूँ। सीडी कैसे करने का? जो आफ्टर टीडी अमाउंट है, अगर हाफ कैश है तो उसका हाफ करो, उस पे करो कैलकुलेट। 1/4 है तो उसका 1/4 करके उस पे करो कैलकुलेट। 1/3 है तो उसका 1/3 करके उस पे सीडी कैलकुलेट करो। तो उसका जीएसटी किधर ऐड करेंगे? जीएसटी पहले ही हो चुका है, यहाँ पे टोटल पे ही ले लिया है तुमने जीएसटी, फिर वापस जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है, समझा? हाँ, तो कैश बैंक क्रेडिट 3 है, तो कैश और बैंक दोनों पे सीडी आएगा। कैश और बैंक, हाफ कैश हाफ बैंक है तो सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन सेम रहेगा। पहले टीडी माइनस करो, फिर जीएसटी ऐड करो, फिर ब्रेकअप करो, और फिर जितना कैश जितना बैंक है उस पे सीडी कैलकुलेट कर लो। बट सीडी कौन से अमाउंट पे करना है? आफ्टर टीडी अमाउंट पे करना है, ब्रेकअप करके। मैं बताता हूँ, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में ही वो करेंगे हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल में ही आ रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में विल डू दैट। सो फॉर सेफ साइड, इफ यू वांट पोदार, यू कैन कॉपी दिस एंड कीप। ओके, कैलकुलेशन भी मैं बता देता हूँ फॉर पोदार। जस्ट टेल मी समवन, 1710 का 66% कितना होता है इधर? 102 102 तो इधर आपका टोटल वैल्यू, और 1800 का 66% इज 108 तो ये हो जाएगा 2016, और ये हो जाएगा 1914। ओके, तो दिस इज फॉर पोदार, ओनली पोदार स्पेसिफिक। ये आप सेफ साइड के लिए लिख के रखो, मे बी सपोज पोदार चेंजेस टू फॉलो अदर कॉलेजेस, तो आप वापस ओरिजिनल मेथड कर सकते हो जो मैंने किया है। तो पोदार आपको दोनों करने पड़ेंगे कॉपी, सैडली। ओके, हजाम पट्टी है थोड़ा, बट बाकी
कॉलेजेस ऊपर वाला मेथड। एंट्री कैसे फ्रेम करना है, ऊपर वाले मेथड से मैं बता रहा हूँ, एनएम वाला मेथड। और उस मेथड से आंसर हाउ विल यू, इसमें अलग ही आ रहा है ना आंसर, देखो ना उधर 1926 आ रहा है, इधर 1914 आ रहा है, आंसर चेंज हो गया है ना। जीएसटी भी चेंज हो गया है, देखो ऊपर जीएसटी कितना है 216 है, यहाँ पे जीएसटी कितना आएगा 108 प्लस 102, 210 आएगा जीएसटी। उधर जीएसटी इज 216, इधर जीएसटी इज ये दोनों को ऐड करके 210 पपोदा। ओके, अभी इसका जर्नल एंट्री ट्राई टू फ्रेम क्या क्या है, देखो टीडी है, सीडी है, जीएसटी भी है, और परचेज किया है आपने, कैश अकाउंट डेबिट, सेल किया या सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी। एग्जैक्टली 6 अकाउंट्स का एंट्री है, बड़ा सा एंट्री है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, पहले तो कैश आया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट सीडी है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, देन अशोक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टली क्रेडिट पे भी है तो अशोक अकाउंट डेबिट टू, हाउ आर वी मेकिंग द सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अशोक, ये डेबिट हो गए क्योंकि सेल हो रहा है, और नॉर्मली विदाउट जीएसटी होता तो खाली सेल्स इनकम यू वुड हैव क्रेडिटेड, बराबर है। इसके साथ जीएसटी भी था, सो टू सेल्स के साथ चिपक जाएगा आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। डिड यू गेट द एंट्री? अमाउंट बाद में हम लोग आराम से करते हैं, पहले एंट्री समझ में आ गई सबको। पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट तो बहुत बार किया, कल पेपर में भी किया आपने, कैश डिस्काउंट पार्टी टू सेल्स, उसके साथ जीएसटी चिपका दो, सो टू आउटपुट टू आउटपुट। यही अगर परचेज होता तो उल्टा, परचेज इनपुट इनपुट टू कैश टू डिस्काउंट टू पार्टी। ओके, नाउ अमाउंट, एकदम ध्यान से देखना अमाउंट्स को। कैश अकाउंट डेबिट ऊपर वाला, नॉट पोदार मेथड, दिस वन, कैश अकाउंट डेबिट, how much cash are we receiving? 1926. We are receiving 1926. All of you got this 1926? Okay, so cash में लिख दो 1926, कैश में लिख दो 1926 आराम से। How much is discount allowed? 90 rupees. ये रहा 90 rupees CD. How much will be in Ashok? 2006. ये part 2016, this will be in Ashok. How much will be sales? 3006. Sales is this after TD value, okay, 3600 after TD value, invoice value. And how much is output GST? 216. वापस आपने सही किया है कि गलत? You can always cross check this entry. How will you cross check? Debit is equal to credit. Is equal to credit. You can cross verify. Your debit will be always equal to credit. Is that clear? So how to go about TD plus CD transaction? थोड़ा बैठा दिमाग में? What are we supposed I to do? didn't get how we got, you got 1926. 1926 ये रहा 1926। CD काटने के बाद फाइनल अमाउंट जो होता है ना 2016 कैश ट्रांजैक्शन था, बाकी क्रेडिट था, और 2016 आपने बोला कि मैं पे कर रहा हूँ, उसने बोला 90 रुपीज, उसने बोला पे कर रहा हूँ, आपने बोला 90 रुपीज अलाउड, 90 रुपीज डिस्काउंट काट लिया, तो एक्चुअली आपने कितना रिसीव किया 1926 आफ्टर सीडी। ओके, तो ये 4032 जीएसटी के साथ था, ये कहीं नहीं होगा, 201 नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, तो total was 4032 after calculating GST, हाँ, and he was paying 2016, हाँ, and on that हाँ, GST amount we calculated the discount. डिस्काउंट वी कैलकुलेटेड ऑन दैट 2016, जीएसटी तो पहले ही हो गया था, आफ्टर जीएसटी अमाउंट पे हमने डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया, बट डिस्काउंट 2016 पे नहीं किया, 2016 पे we did not calculate. No, we calculated it on 1800 and 1800. then Subtracted it from 2016. Yes. Okay. Welcome. See one more, 2 और 3 एग्जांपल देखोगे ना आपको और क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट समय भी आ रहा है,
पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 वाया डेबिट कार्ड. प्रियल पारिक, क्या होना चाहिए? पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाया डेबिट कार्ड. Printing and stationery account debit to bank. वेरी गुड. प्रिंटिंग सर एंड 30th का दोनों एंट्री कंबाइन हो सकती है. विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस. या यू कैन कर सकते हो, इन दोनों को क्लब भी कर सकते हो. यस, यू कैन डू दैट. इन दिस केस इवन इफ यू राइट सेपरेटली तो भी वांदा नहीं है. ड्राइंग्स है और नेचर थोड़ा अलग है, एक्सपेंस है, बट स्टिल यू कैन क्लब 30th का दोनों एंट्रीज. यस, ओके. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्लब ही कर लो, अच्छा बात है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट. अच्छा, 30th का एंट्री क्या है समझ में आया सबको? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस. व्हाट इज द एंट्री? ड्राइंग्स टू बैंक. ड्राइंग्स टू बैंक. और ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू बैंक, तो आप क्लब कर सकते हो, सेम डेट हो रहा है. तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट 4,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1,000 to bank account. Okay, printing and stationery debit, drawings debit to bank account. Perfect. Same day common credit you can club. So एक राक्षस था सम में, वो राक्षस समझ में आ गया सबको, बड़ा सा एंट्री. और मेथड समझ में आ गया इंडिविजुअल कॉलेज का. सर वो 29 सम का नरेशन क्या आएगा? सेम, being goods sold to Ashok, partly on cash, partly on credit at 10% TD, 12% GST, 5% CD. Same, partly on cash, partly on credit. Okay. Same narration. There is no change. Now let us take another problem, a similar one. You take some number 20. 20th problem you take, some number 20. Last sum for the day. Please draw. Sum number 20. इसके हम लोग बहुत बहुत प्रैक्टिस करेंगे. टीडी, सीडी, जीएसटी मजबूत होने वाले हैं. Before your exams, college exams and all, college papers also will be solving. So practice तो enough होगा ही इसका. Sadly अभी तुम्हारा यूनिट टेस्ट तो स्क्रैप हो जाएगा, सीधा सेमेस्टर आएगा. अभी how they plan to conduct, God knows. So it's going to be only one semester. वही लग रहा है अभी तो. Max 1 or 2 exam they will conduct for full year. 4 exams used to be there normally. Right now IIT JEE का entrance and all सब चालू है pan India. If they are conducting it successfully, 14-15 lakh students, तो आपका भी धीरे धीरे थोड़ा ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा hopefully. Okay, let's see sum number 20, very important problem. Okay, sum number. Looking at the first part, I think all of you will might have known till now क्या करना है. Okay, start करो सब लोग. Opening entry 1st April का. Come on. In the journal of कौन है ये? Samant Brothers. In the journal of Samant Brothers. First of April 2011, cash at bank, that is bank account. Already आपके पास इतने पैसे थे last year से. That is 1,80,000. Cash in hand, इतना गांधी बापू था business में. रोकड़ा, cash in hand account debit 2,000. Land and building property आपके business में already है इतनी. Debit
2 lakhs. Computer and printer account debit. That's another asset of 60,000 rupees. Sundry debtors account debit. That is 10,000. Bills receivable account debit. That is 5,000. Asset. Bills receivable. What is bills receivable and bills payable? Bills receivable is similar to debtor. For the timing, you can remember that, man. And bills payable is similar to creditor. Okay. These are not your electricity bill and all. Bills receivable and bills payable मतलब अलग चीज होता है. इसका मतलब एक डेटर है जिसको आपको पैसा देना है, आपको प्रूफ चाहिए, गारंटी चाहिए कि वो दे, आप एक डॉक्यूमेंट ले लेते हो उस डेटर से. तो अभी वो डेटर आपका एसेट नहीं है, वो बिल्स रिसीवेबल आपका एसेट है. ऐसे हो जाता है बुक में. टाइमिंग जस्ट यू रिमेंबर दैट बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी. इन डिटेल हम लोग आगे जाएंगे तभी बताता हूँ. तो बिल्स रिसीवेबल मिलना बाकी है पैसा, लाइक योर डेटर, ये याद रखना. लाइक योर डेटर, bills payable is like your creditor liability. So to creditor account, that's your liability. Creditor account credit 32,000. To bills payable account, that is 10,000. And to capital account, this is the amount of capital. 182, 380, 440, 455, 457 minus 40, 417, 415,000. Please check. 4,15,000 आ रहा है आपको capital? Yes, sir. 4,15,000. सर इसमें नरेशन लिखना है? नहीं, नरेशन स्किप कर दो. Skip the narrations. Narrations क्या है अभी? किसी को है issues narration frame करने में अभी भी? Anyone? Okay. Narration, you can just mention the question also. Okay, if at all you are stuck, then you can save time. No narrations now. Skip narrations. 2nd April. देखो वापस आ गया राक्षस. 2nd April को. Purchase goods from Mohan were 20,000 at 10% TD, 5% CD, paid 30% of the amount in cash and 20% of the amount by check, and GST is 18%. तो अभी एकदम ध्यान से देखना. लास्ट समय मैंने जैसे किया था, बताओ मुझे. यू ओनली गाइड मी. हाउ विल आई डू इट? फर्स्ट स्टेप, व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू? Subtract TD. फर्स्ट स्टेप आई सब्ट्रैक्ट TD. ऑल ऑफ यू एग्री? TD, GST, CD सब कुछ है. तो पहले सब्ट्रैक्ट TD. हाउ मच इज TD? 10%. So 2,000. क्योंकि TD तो दोनों पे कैश एज वेल एज क्रेडिट. ठीक है. तो 18,000 मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया. ठीक है. सब्ट्रैक्ट करके 18 मिल गया. फिर क्या करना है? डायरेक्टली CD करूं? GST ऐड करना है. GST is how much? 18%. So add CGST 9%, SGST 9%. बराबर है. 18 9s are 162. So 1620 ऐड करके आपको मिलेगा 21,140. 21,240 है ना? 21,240. Please check. 21,240. Once you have received this, then what do? Then you divide it into how many parts now? 3 parts. Okay, 3 parts. Because there is cash, there is check, and there is credit also. So 30%. Sir, can't we do like cash and bank together once and subtract the discount and then divide? It will be easier. But then again, तुमको वो 30% 20% नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुमने पहले ही 50-50 किया हुआ है. तो 50 का 30 और 50 का 20, मतलब 15% और 10% करना पड़ेगा. ऐसा सीन हो जाए. इससे अच्छा पहले ही कर लो, इधर ही 3 हिस्से कर लो तो इजी पड़ेगा. ओके.
So 30% cash, 20% bank, and 50% credit. Tell me the breakup. 21 to 40 का 30% कितना होता है ये? 6,000. 372. 372. 20% is 4248, and 50% in दोनों का total 10,620. 10,620. 30%, 20%, 50%. All of you comfortable till this part? Now you go for CD. Now CD will be on what? Cash or bank or credit or Cash all? and bank. Cash and Cash and bank both. Cash and bank both. What is the percentage of CD? 5%. Percentage of CD is 5%. So 5% of 6372 करना है क्या? नहीं सर 18,000 18,000 का 30% एंड 20%, तो वो कितना होता है? 5,400 एंड 3,600. तो ये 5,400 पे 5% लेना है आपको. मैं इधर दिखा देता हूँ. 5,400 पे 5%, दैट इज 270 रुपीज. 270 आपका यहाँ पे सीडी आएगा. समझा कैसे किया? ये जो 18,000 है ना, बिफोर जीएसटी वाला, आफ्टर टीडी वाला अमाउंट दिख रहा है सबको? लास्ट सब में भी मैंने सेम किया था. उधर हाफ था, इसके लिए मैंने 3600 का हाफ लेके सीडी किया. 30-20% है, तो 18,000 का 30% होता है 5,400, उसका 5%, दैट इज 270. वो आपका सीडी होगा. तो व्हाट इज योर फाइनल अमाउंट? 6102. सिमिलरली यहाँ पर भी बैंक पार्ट में भी आप सीडी माइनस करोगे, कितना होगा? 210. 180. 180 होगा. ये भैया 3,600 का 5%. हेलो, समझा? 3,600 और 5,400, इसका 5%. ये 5400 और 3600 कहाँ से टपक पड़े? समझ में आया सबको? आफ्टर टीडी अमाउंट्स. आफ्टर टीडी अमाउंट्स जो भी है, ओके, उसी पे यू आर टेकिंग जीएसटी. तो माइनस करके कितना आंसर आ रहा है? 4068. 3978. ओ सॉरी, नहीं, No, 406. 406 बराबर है. 4248 माइनस 180 है ना, 4068. और क्रेडिट वाले पे कोई सीडी लेना नहीं है आपको. तो सबसे इंपॉर्टेंट था सीडी का कैलकुलेशन. सीडी का कैलकुलेशन समझ आया सबको? Did you understand? Hello, all of you. Now try to frame the entry. बहुत बड़ी एंट्री आएगी, बहुत बड़ी एंट्री. परचेज कर रहे हो. Purchase account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to Mohan account, to cash account, to bank account, to discount received account. Yes, सबको बैठा दिमाग में? काम कहानी है पूरी. देखो, परचेज अकाउंट डेबिट पहले तो एक्सपेंस है और इनपुट जीएसटी चिपक जाएगा. व्हेनेवर यू बाय, यू डेबिट इनपुट जीएसटी लाइक योर एसेट. आपने ऑलरेडी पे करके रखा है, बेनिफिट मिलेगा आपको. इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश भी है तो टू कैश अकाउंट, टू बैंक भी है तो टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट भी है, सीडी भी है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, टू क्रेडिट पार्ट भी है, इससे खरीदा मोहन, सो टू मोहन अकाउंट. 7 account entry, okay, biggest entry you may have possibly. So purchase, input to cash, to bank, to discount, to mohan. Entry कैसे frame की, समझ आया आपने? How many marks does this come for? This entry individually they don't ask only usually in any of the, तक कभी आया नहीं है, but safe side, okay, you never know. Extra practice, you need to be ready for everything. Purchase account debit, jara think and tell me, purchase account debit how much? 18,000. Purchase account debit बहुत सारे अमाउंट है, जो मन में उठा मत लेना.
18,000. Purchase account will 18,000. be after TD amount, bill amount 18,000. अभी अंतरात्मा से पूछो जीएसटी में क्या लिखना है? 1620. 1620 आपके सामने है जीएसटी कैलकुलेशंस. टू कैश में कितना लिखना है? पूछो अपनी आत्मा को टटोलो और बताओ. हाउ मच आर सपोज्ड टू? 6102. 6102. This is what you paid after deducting the discount cash. How much you will write in bank? 4068. 4068. Very good. How much you will write in discount? Very important. 450. 270 हाँ, plus 180. 270 plus 180. कितना होता है 270 plus 180? 450. And how much you will write in Mohan? 10,620. 10,620 rupees. Okay. 10,620. This is one of the textbook methods. I told you there are two methods in textbook. This is one from the textbook method. Okay. But sadly both are wrong. Correct method is पोदार वाला. पोदार में क्या करता है? पहले टीडी माइनस करता है, फिर सीडी माइनस करता है, फिर टुकड़ा करके इंडिविजुअली जीएसटी ऐड करने का. That becomes very much tedious in calculation. So other colleges don't follow that. So that's your entry. Okay. पोदार फिलहाल यही लिख लो. फिर अगर फिर सेपरेटली नया मेथड होगा तो I'll take separate sessions for पोदार people separately. उधर हम लोग आपके जीएसटी के सम्स अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे. पोदार में तो और भी काफी जोल है. पोदार यहाँ पे तो आपको क्या सीन है? जो ट्रांजैक्शन में जीएसटी दिया है उधर ही लेने का है ना. सब में नहीं लेते हम लोग जीएसटी. जिधर स्पेसिफाई करके दिया होता है उधर ही लेते हैं. पोदार में तो सब में लेने का. परचेज किया जीएसटी लो, सेल्स किया जीएसटी लो, परचेज रिटर्न जीएसटी लो, सेल्स रिटर्न जीएसटी लो, कैरेज हुआ जीएसटी करो, वेजेस हुआ जो एक्सपेंस इनकम कर रहे हो एक्सपेंस उस पे जीएसटी पे करो, इनकम कर रहे हो उस पे जीएसटी रिसीव करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. तो प्रैक्टिकली भी तो ऐसे ही होता है. प्रैक्टिकली वैसे ही होता है. दैट्स व्हाट इज फॉलोड बाय पोदार. यस, वेरी ट्रू. अच्छा, इसका नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सेम नरेशन है. बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन पार्टली ऑन कैश पार्टली ऑन क्रेडिट एट सो एंड सो जीएसटी वगैरह. ओके, कम ऑन. नेक्स्ट वन देखो. अभी फोर्थ वन, परचेज्ड शेयर्स ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड 10,000 एंड पेड 100 रुपीज एज ब्रोकरेज. क्या होगा एंट्री आपका? सिंपल है. Investment in shares account to bank account. वेरी गुड. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितना आएगा? तो दैट इज 10,100. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,100. ओके, वापस आ गया राक्षस. 6th April. अभी सेल किया है आपने. ओके, now I want you all to try it on your own. Would you be able to try this? Would you be able to try this? Try this, Rakshas. Come on. I'll also solve it. You also try it. Sold goods to Sunita 30,000. तो पहले तो आपको TD subtract करना है. 3,000. Net amount is 27. फिर आपको जीएसटी ऐड करना है. प्लस जीएसटी 9% प्लस SGST 9%. 2 9s are 18, 7 9s are 63, 2430. Sir, Yes. I'll have to take the PDF, so I'll go Yeah. You finish now? Yeah. ठीक है. Perfect time. No problem. Just make the PDF and send it to me on personal chat. Okay. Okay. Thank you, sir. Welcome. 27 plus 4 is 31,860. Are you getting these calculations? 31,860 you're getting? Yes, sir. Please check. Yes. Okay. हाँ बोल भाई. हाँ 9:45. है लेक्चर है. सेंड कर रहा हूँ. Then
We go to the next one. यहाँ तक होने के बाद आपको करना है क्या, यहाँ के डिवाइड करना है आपको 1/3 1/3 या 1/3 1/3 1/3, तीनों 1/3 ही हो गया. 1/3 कैश, 1/3 चेक, 1/3 credit. So how much you getting? 10,620. 10,620. 10,620. 10,620 less CD is 5%. Don't take that 5% on 10,620. Okay, you'll take it on iska breakup. 27 ka breakup will be 999. So 450. 450. आफ्टर टीडी अमाउंट वाले का ब्रेकअप करके सीडी कैलकुलेट करना है आपको. ठीक है, आफ्टर टीडी अमाउंट का 1/3 1/3 1/3 करके. So 10,620 minus 450 shall give you 10,170, I think. Please check. 10,170. Yes. And then try to print the big entry because you are selling. So cash आएगा, debit what comes in, check आएगा, बैंक is the receiver, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड है, ऑब्वियसली सेल किया है, कम पैसे मिलेंगे, एक्सपेंस है, टू सेल्स. अच्छा, क्रेडिट कंपोनेंट भी है, पार्टी का नाम भी आएगा यहाँ पे. कौन है पार्टी? पार्टी 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 सुनीता. सुनीता अकाउंट डेबिट टू sales account, to output CGST account, to output SGST account. Okay, यहाँ तक मिला आपको? Any doubt, any confusion, anyone? Please tell me. बोलो. तो सीडी आपने टीडी के बाद वाले अमाउंट पे कैलकुलेट किया है ना? यस, टीडी के बाद वाला 27 को 1/3 1/3 1/3, जैसे लास्ट सब में 30-20 था ना, तो 30% 20% करके किया. इधर 1/3 1/3 1/3 था, तो 27 का 1/3 1/3 1/3 999. 9,000 पे 5%. Clear? So did you receive it? Yes, yes, I got it. Bye, sir. Bye, take care. You too. चलो, हो गया. Cash account debit. How much you'll write in cash account debit? Tell me. 101,1017. 10170. How much in bank account debit? 10170. How much in discount allowed? 900. ये दोनों को मर्ज कर देने का, दोनों सीडी को ऐड कर देने का, 900. How much in सुनीता? 10620. ओके, बराबर है. Then how much in sales? 27,000. Sales 27,000 after TD amount. Bill value, output CGST, output SGST will be 2430. You should verify and check. You can always check. Your total should be tallying. Debit should be equal to credit. Is this clear? So ये राक्षस आ गया. This is the ultimate difficulty level of GST. इससे difficult फिर खाली पोदार को आता है. Okay. तो पोदार का सेमेस्टर का पेपर was फाड़ू last time. फाड़ू मतलब फाड़ू. Literally वाट लगाया था. Literally. Within 2 hours, they had 4 questions, 4 chapters, and all भर के GST. नहला दिया था GST से पूरा पेपर को. इतना GST. And students were like, half the class failed almost. Half the class failed. Not ours, huh? अपना तो highest था. 49 was the highest. उधर कॉलेज का आधा क्लास फेल हुआ.
अपना 45, 45, 49 और एक को 38 आया था। चलो नेक्स्ट वन इज, ऐसा मिठी बाई में नहीं करेंगे ना, सब बोलते हैं मिठी बाई के पेपर्स भी हार्ड होते हैं। मिठी बाई का है ना, वो क्या करता है, थियोरी ज्यादा पूछता है यूनिट्स और सेमेस्टर्स में, इसके लिए पब्लिक को डिफिकल्ट लगता है। People, what do? They do only some. They don't read the theory. We'll discuss the theory again. Standard textbook का, sheets का and all. इसके लिए वो tough लगता है. Papers are not tough. Then come to sum number 11. 11th transaction. Paid house rent of 1,000 and telephone bill of proprietor's house. क्या होना चाहिए entry? Drawings to cash. पूरा Drawings दोनों to के लिए cash. drawings to cash? Yes, proprietor's house है. So drawings account debit to cash account. Drawings account debit to cash account should be how much? 1,500. Drawings account debit to cash account 1,500. Okay. Then 22nd. Goods worth 4,000 destroyed by fire. Insurance company admitted a claim to the extent of 3,000 only. We have done that. Paper में भी था कल. Were you able to attempt that? All of you got that? Palak, what should be the entry for this, Palak? Loss by fire account. Debit. Insurance company debit. Yes. Goods lost by fire account. Very good. Insurance company या insurance claim भी लिखो, चलेगा. To goods lost by fire account. Okay. And that will be how much? 4,000 is the total loss. 3,000 का claim है. So actual loss will be how much? Only 1,000. Total में आएगा 4,000. Correct? Paid personal income tax by check. Megha Goel, can you try to answer this? Paid personal income tax by check. Drawings account debit to bank account 5,000 5,000. Very good. और ये खाली income tax होता तो भी drawings to bank. तो भी drawings to bank ही आता. Income tax is a personal expense. याद है? बताया था. Sole proprietorship कोई separate business पे tax नहीं होता है. So income tax is personal. So drawings account debit to bank account, that will be 5,000 rupees. Drawings account debit to bank account, that will be 5,000 rupees. Is that clear? Okay. Then the next one is purchase furniture of 20,000 GST 28% and paid carriage 200 on office furniture. ये कल वाले टेस्ट में भी था, if you remember. ओके ऐसा ट्रांजैक्शन आ गया तो पहले जीएसटी किस पे लेना है आपको? फर्नीचर पे लेना है? 20,000. Only on furniture. Only on furniture. Only on furniture. ठीक है. कैरेज जो है लोकल कैरेज अज्यूम करना है, कैश में आप दे रहे हो विदाउट जीएसटी, तो खाली फर्नीचर पे जीएसटी आएगा आपका. तो पहले तो फर्नीचर पे जीएसटी ऐड करना है. फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 20,000 है प्लस सीजीएसटी 14% plus SGST 14%, 2,800, that is 25,600. एंड प्लस कैरेज आप बाद में ऐड कर सकते हो क्योंकि परचेज के वक्त हो रहा है, तो एड अप टू द कॉस्ट. टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज 25,800. ओके ये आया था कल, पेपर में भी था. ओके एंट्री क्या लिखा है आपने पेपर में? वही एंट्री बोलो मुझे. यहाँ पे क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, account debit, both accounts will be debited. Then for paper it was bank account debit to cash account debit, and in furniture we put the total amount, and over here it will come cash because we are paying at least by cash. That's about bank system. Here there is no check, so entire amount is paid by cash. बराबर है? Here there is no check, so entire amount is paid by cash. Paper में it was partly bank, partly cash. Remember? Paper में it was partly check and partly cash. So इधर तो पूरा कैश ही है. तो फर्नीचर इनपुट टू कैश. व्हाट वैल्यू विल यू राइट इन फर्नीचर? 20,200. वेरी गुड.
20,000 ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्लस कैरेज ऐड हो जाएगा ना कॉस्ट पे, खरीदने के वक्त हो रहा है कॉस्ट कंसेप्ट। फर्नीचर आया आपका 20,200 का और जीएसटी कितना है उस पे 2800 पैसा कितना दिया आपने टोटल 25,600। या वेरीफाई कर सकते हो, आपको सेम आंसर आएगा 25,800 सॉरी 25,800। ये वेरीफाई कर सकते हो, आपको डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट सेम आंसर आएगा 25,800। या पर एक्चुअली कैरेज पे भी जीएसटी रहता है ना? यस यस, बट वो कैसा है, अगर कंपनी डायरेक्ट इंस्टॉल करवा रहा है तो आपका कंपनी पे सर्विस पे भी लगेगा और गुड्स पे भी लगेगा, आपका एसेट पे भी लगेगा, दोनों पे लगेगा। बट अगेन आपको अगर स्पेसिफाई करके नहीं दिया तो डोंट टेक, ओके, टेक इट ओनली ऑन द एसेट। लगता है प्रैक्टिकली सर्विस है ना, GST same percent for carriage and asset. नहीं एसेट पे अलग रह सकता है, कैरेज इज अ सर्विस ना, ऑल सर्विसेज कम अंडर 18% कैटेगरी, सर्विसेज पे 18% ही होता है फिक्स, बट एसेट पे इट वेरिएट्स 5%, 12%, 18, 28 भी होता है किसी, इस पे 28 है। देन transferred 15,000 from private bank of the proprietor to the business bank of India account. Very good question. Bank of India to capital. Bank to capital account. Bank of India to capital या bank to capital, सबको समझ आया ये? All of you got it? निशी, हीत, सबको समझ आया? जैनम, बैंक में जा रहा है पैसा और कौन दे रहा है? ओनर दे रहा है डायरेक्टली फ्रॉम घर। So bank account debit to capital, yeah, you can write Bank of India to capital. So bank to capital account या Bank of India to capital. Business का बैंक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, प्राइवेट बैंक दे रहा है, ओनर इज द गिवर, 15,000 rupees. Okay. And the last question, salary is paid 4,000 in cash, 6,000 by check. Very easy. Come on, क्या होगा entry? Salary account debit to bank, cash to bank. All of you got that? थोड़ा कैश थोड़ा चेक। सैलरी में कितना आएगा तो 10,000। हाउ मच डिड यू पे इन कैश 4,000। हाउ मच यू पेड बाय चेक 6,000। दैट्स योर सॉल्यूशन। समझ गया कि नहीं? राक्षस समझ में आया? मेन इंपॉर्टेंट स्टफ फॉर टुडेज लेक्चर वाज TD plus CD plus GST. If you're comfortable with that method, comfortable with the entry part, still you have to pay close attention of what they are doing in the college with this. Last year तक तो ये करवा रहे थे, NM Mithibai and SIS also, even HR also. But still अगर by chance lecture में chance मिले प्रोफेसर से पूछने का या कुछ हो तो ध्यान रखना कैसे करवा रहे हैं। Okay, keep a close eye. सोमैया में भी सेम ही है ना? सोमैया में GST बहुत कम पूछते हैं, TD plus GST पूछते हैं, CD तक जाते ही नहीं है वो। सोमैया को टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं। Okay. तो ये अपना मेथड है, ये ध्यान से करना है, ठीक है? और गुड डाउट्स एनीवन टिल दिस पॉइंट? बताओ, पेपर में कोई डाउट, होमवर्क में कोई डाउट? होमवर्क सम आया सबको? लास्ट लेक्चर का होमवर्क सम क्लियर है सबको? ओके, आज मैंने डिस्कस नहीं किया, होमवर्क रह गया है। यू कैन जस्ट वेरीफाई द सॉल्यूशन, उधर नीचे ही दिया है टेक्स्ट बुक में, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना खुद का आंसर साहब। ओके, शायद मेरा कुछ सपोज मिस्टेक हुआ हो चेकिंग में, तो एक बार चेक कर लेना, डाउट है तो लेट मी नो। एंड दैट्स इट, आपको आज का होमवर्क मिल जाएगा। हम लोग मिलते हैं सैटरडे, ठीक है? So in yesterday's paper, like there were multiple double entries, right? Like on the sales returns किया तो उसका double entry होगा ना? सेल्स रिटर्न अलग, परचेज रिटर्न अलग। हाँ, वो same was returned back to the, तो वो कैसे होगा? सेल्स रिटर्न टू सेलर, सेल्स रिटर्न टू बायर, मतलब सेल्स रिटर्न टू डेटर जो भी है, एंड पार्टी टू परचेज रिटर्न, जिससे खरीदा है टू परचेज, अलग अलग। एंड अमाउंट में भी 1000 और 800 अलग अलग। सेल्स रिटर्न में 1000, परचेज रिटर्न 800। ओके, अलग अलग। वैसे एक एंट्री था उधर टेलीफोन डिपॉजिट और एक इनकम थी डिविडेंड, वो क्लब नहीं करना था बिकॉज एक एसेट था और एक इनकम था। ओके,
डिविडेंड का एंट्रीज बैंक टू डिविडेंड, टेलीफोन डिपॉजिट का एंट्रीज टेलीफोन डिपॉजिट टू बैंक या कैश, जो भी था. Yes, and dividend is an income, no? इनकम. और ऐसे सब में दो बार डेट नहीं लिखा, एक ही बार डेट लिखा और फिर कंटिन्यू किया तो चलेगा? चलेगा. That is okay. That is fine. Okay. Any other doubts? If you have, you can wait. Otherwise, you can leave. Tata, bye bye. See you. We meet on Saturday. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. sir. Thank you, Sir, sir. thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye.